Hello everyone. So we studied EMA and we also checked it mathematically that according to the equation of EMA, what we are getting in regards to your changes in the previous gradients and how we are giving importance to the recent gradients. So, as per the equation and the derivation we did, there we took v0 equal to 0. Okay, and then your v1 was equal to beta v0 plus 1 minus beta into the gradient term. Okay, here that will be your, let us suppose, your theta. Okay, so we used this equation and we further moved ahead to form rest of the EMA equations and so on. Okay, fine. And the answer which you got here at the last was Vt. Okay, that means Vt is equal to 1 minus beta, and then you are getting summation of beta t ki power minus I. Okay, so here I'm going to take the summation beta and theta. There are certain powers to both of them. Okay, that means corresponding to the terms. Okay, beta t minus I and theta I. T minus I and theta I. Okay, fine. So this is what we achieved by generalizing the equation for this exponential moving average. And then we proceeded ahead for one formula of limit. Okay, and that formula was like limit 1 minus x, like limit x tends to 0, 1 minus x to the power 1 upon x, that is equal to 1 by e. That's a famous formula. Okay, and here we put 1 minus x equal to beta. Beta, then your 1 minus beta will become x. Okay, and we substituted in the equation, above equation. So that will be like limit x tends to 1, then beta to the power 1 upon 1 minus beta, that is equal to 1 upon e. Okay, and what we came to know from this equation of exponential moving average is that here you will be getting all the values, that means like as you proceed. Okay, fine, in this particular way for the EMA. Okay, so the point is, as we move ahead, the recent value of the EMA will be more, and the older values of the EMA will be getting less. So it is certainly like, if I just say that it is beta t minus I into theta I, okay, or something like beta key power k
into theta. And if we are in a recent calculation of a gradient, then it will be like beta into theta. And if we move ahead, okay, so the older ones will be certainly getting lesser and lesser and lesser. So that's what the concept of EMA says. Later on, according to this formula, we did something like substitution. Okay, there what we did, beta की power 1 upon 1 minus beta is equal to beta की power t. That's what we did. And then we calculated the value of t, that is 1 upon 1 minus beta. Okay, where t is the time stamp. We know about this thing. Okay, so here one more thing came, that decay. Okay, because beta is a decay rate. Okay, so according to this beta equal to 1 upon 1 minus beta, it is said that 1 upon e, that means 0.368. This much is the decay. Okay, so we did a question that after how much time steps your weight will get decayed by this particular value. Decay means obviously weight or a parameter, ultimately whatever you want to say, because we are multiplying beta with the parameter. That's what we are doing. Okay, or the rate of change of loss with respect to the gradient. Okay, just corresponding you can say like this. Okay, fine. So here we are saying that after how much time stamp your weight will be decayed by 0.36. This is what a general equation is. And then I also showed you a table where we put the value of beta, which we assume like to be zero point 0.9. So t is like 1 upon 1 minus zero point 0.9, that came to be 10. Okay, so if you are taking the value zero point 0.9, so it will be taking 10 time steps. Okay, 10 time steps will be taken. Okay, for this much decay, I think that could be one of the solution. Okay, it will take 10 times steps. And then if you take 0.99, then it will take 100 times steps. Okay, fine. So this is what we did seen in the equations derivations for your EMA in the previous class. Now let me share the entire screen and explain you more about it, because now we have to proceed ahead for the bias correction. Okay, so here we seen this complete derivation. This is how your weight distribution for different time steps look like. Okay, the formula which I was referring, I explained yesterday, and this is what the table. Okay, and according to the value of beta, okay, you will get the value of t. Okay, fine. So the reference values are zero point 0.9 and 0.99. This much expected decay we want in a parameter. Okay, so how much time step it will take? So here it will take 10, here it will take 100 time steps. Okay, so that's what this said. For example, taking beta zero point 0.9, it will take about 10 time steps to make a weight decay by 1 by e, यानी कि वेट को इतना कम होने में, मतलब हाउ मच 0.368 का डीके उसके अंदर आ जाए। यदि आप बीटा की वैल्यू इतनी लेते हो तो वो 10 टाइम स्टेप लेगा जिसमें उसका वेट इतना डीके हो जाएगा। तो ये समझाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो आप यदि इफ यू डू टेक certainly according to the table which I am showing right now,
ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ऑलराइट। तो यदि बीटा 0.5 लेते हो तो 2 टाइम्स स्टेप के अंदर इतना डीके हो जाएगा। यदि 0.6 लेते हो तो इट विल टेक 2.5 टाइम स्टेप्स। ओके, 2.5 टाइम स्टेप्स और ये 3.3 6.7 ये तो शायद नहीं मुझे प्रेफरेबल लगा। द प्रेफर्ड थिंग इज कंप्लीट राउंड ऑफ फिगर वाली बात करें तो 10 टाइम स्टेप्स की ठीक है, और 0.9 बीटा ले लो आप, तो इतने टाइम स्टेप्स के अंदर वो 0.368 का डीके दे देगा। ओके, इतना कम हो जाएगा वेट, इतने टाइम स्टेप्स में इतना कम हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टी इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा इन कंटेक्स्ट ऑफ द ई एम ए, वो बात कर रहा है। ओके, ये आपकी ई एम ए की इक्वेशन है, कई बार लिखी मैंने आपके सामने। ठीक है, ये न्यू है, ये ओल्डर है, ये करंट ऑब्जर्वेशन है। ओके, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा, स्मूथनिंग फैक्टर बोल दो चाहे डी के फैक्टर बोल दो, 0 से 1 के बीच में है ये बात। और स्मूथनिंग फैक्टर बोलेंगे तो वी हैव टू बी कॉशियस, लाइक जो प्रीवियस वाले हैं उनको स्मूथ करना है। ठीक है, और रिसेंट वाले को क्या करना है, उसको इफेक्टिव बनाना है, ये चेंज रहेगा। दैट्स व्हाट वी शुड बी हैविंग। Okay, and if you talk about the decay factor, so the previous EMA should be multiplied with the decay factor, and the current one should be multiplied by 1 minus decay factor. So that's what you have to clear. Okay, uh, ये होना चाहिए आपको। ठीक है, आइडिया। देन फिर अपन आगे बढ़े। ठीक है, विंडो साइज कितनी रखना है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव विंडो साइज, दैट मीन्स इट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द ईएमए। ऑल्दो ईएमए इंक्लूड्स ऑल द पास्ट ऑब्जर्वेशंस, वो तो उसमें होते ही हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओल्डर ऑब्जर्वेशन डिमिनिशेस एक्सपोनेंशियली, दैट वी नो, अभी देख लिया ऊपर प्लॉट से भी पता चल गया कि वो ऐसे जा रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल डीके ही है। ठीक है, so to understand why t equal to 1 upon 1 minus beta represents effective window size. Okay, कि window size यानी कि how much will be the time step will be taken so that there will be an exponential decay of the weight or the parameter with the rate of 1 by e. Okay, उसकी बात कर रहा है ये। फाइन, सो इफ यू कंसिडर द फैक्टर बीटा की पावर के, क्योंकि यही मल्टीप्लाई होगा थीटा के साथ। ठीक है, फाइन। तो यहां ले लिया उन्होंने बीटा की पावर के। ओके, के इंक्रीज होगा तो बीटा की पावर के डिक्रीज होगा, क्योंकि बीटा 0 से 1 के बीच में है। ऑल राइट, ये क्वाइट ऑब्वियस सी बात है। फाइन, सो द आइडिया बिहाइंड टी इक्वल टू 1/1 माइनस बीटा कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग हाउ क्विकली द वेट डिमिनिश। ओके, हाउ क्विकली इट गोज डाउन, इसलिए ये आ रहा है। और डी के हमारा है 1/e का। ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड that how the past observations are influenced and there is a change in the weight by 1 upon e, ये हम देखना चाह रहे हैं। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी उन्होंने करके बताया। उन्होंने कहा कि मतलब लेट अस फाइंड के, कि वो 1 अपॉन ई कब हो जाएगा। ओके, तो बीटा की वैल्यू नोन है, के की वैल्यू मेरे को पता करनी है, तो मैंने 1 अपॉन ई से उसको इक्वेट कर दिया। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट up to which k value my beta will get down to 1 upon e। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया। ओके, देन आप ले लो लॉग वगैरह, जो भी चीज़ें होती ले कर भी लिया उसने। ठीक है, ऑल थिंग्स इट डिड, देन द वैल्यू ऑफ के केम टू बी लाइक -1 अपॉन लॉग टू द बेस ई बीटा। ओके, ये आई है। फाइन, एंड देन फॉर सिंप्लीफिकेशन, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ दिस थिंग वी यूज अप्रोक्सीमेट ln बीटा टू बीटा -1, ये करते हैं अपन। फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ बीटा वी टेक log of beta is beta -1, since beta is close to 1। ठीक है, तो वो नियरली 1/1 माइनस बीटा ही हो जाता है, तो फिर हमने उसको बोल दिया हेंस 1/1 माइनस बीटा इज अवर आंसर। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम स्टेप टेकन फॉर अ वेट टू गेट decayed अप टू 1/e इन एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यही बता रहा है वो, और आपकी टेबल में ऊपर जो है यही बात थी। ओके, फाइन, एंड देन फिर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके, दैट इज योर बायस करेक्शन विच इज इंक्लूडेड इन योर एडम ऑप्टिमाइजर। ओके, फाइन। तो देर इज अ कॉमन प्रॉब्लम विथ ईएमए, and in that particular problem it cannot approximate all the values। okay,
It occurs due to absence of sufficient amount of data on the first iterations. Yesterday also I told. Okay, for example, imagine that you have given a time series. Okay, this is what you are seeing in a diagram. The goal is to approximate it with the EMA. Okay, however, if we use a normal formula, then the first several values will put a large weight on V naught, which is 0, whereas the most of the points on the scatter plot are about 20. As a consequence, a sequence of first weighted average will be too low to precisely approximate the original sequence. Um, See, थोड़ा सा ट्विस्ट है इन बातों में. हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं ना, सीक्वेंस. ओके, सीक्वेंस. So it is saying that initial iterations, the first iteration, initial iteration, does not have the sufficient amount of data to decide the sequence, to decide the pattern. Okay, fine. To decide the trend, they are not enough. Okay, when we start and performing EMA, okay, so it's saying that initial amount of data is not capable enough to decide what will be the pattern or what will be the trend. It takes time to give you that, okay, huh, this is the pattern, this is the trend followed. Okay, and we are having EMA value 0 initially. Okay, and we can see that most of the points on the scatter plot are about 20. Okay, what they have given, that most of the points are about 20, you can see about 20. Okay, these so most of the points are about 20. Okay, and we are taking our EMA as 0 because अब क्या करें, या तो एक अप्रॉक्स करो, that we can take EMA value initial as the first point value itself. 10 ही ले लो उसको या 20 ही ले लो, जहां से शुरू हो रहा है वही मान लो. ऐसा करो. एंड एल्स केस में इट हैज बीन टोल्ड कि आप EMA 0 से स्टार्ट करो. ठीक है, अब EMA पर आएगा लोड, 0 लोगे तो. ठीक है, इट नीड्स टू एडजस्ट इट सेल्फ, इट विल टेक टाइम फॉर द एडजस्टमेंट. ठीक है, आप को ये करना पड़ेगा. ठीक है, यही कह रहा है वो, that if you take as the consequence the sequence of the first weighted average will be too low to precisely decide कि sequence होगा क्या. ठीक है, तो एक सोल्यूशन मेरे को जो नजर आया, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस शीट ऑल्सो, दैट इफ वी आर अवेलेबल विद द डेटा. Okay, I hope you remember that we were available with the data 10, 15, 12, something like that. We are available. And there we took EMA, the first as the value, उसी को ही मान लिया था. अभी ये कह रहा है जीरो लेकर चलो, क्योंकि इसने एक्सप्लेन ही जीरो से करा है. इट एक्सप्लेन्ड इट विद जीरो टर्म. ऑल राइट, फाइन. सो द थिंग इज कि अब क्या करें. ठीक है, ये जो है पैटर्न इनिशियल पॉइंट्स पर इशू दे रहा है. सो वन ऑफ द नेव सोल्यूशन इसकी तरफ से इज टू टेक अ वैल्यू वी नॉट क्लोज टू द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. ये अभी बोल दिया मैंने, जस्ट रिसेंटली आई टोल्ड कि आप एक काम करो, 20 मान लो, है ना, जीरो मत मानो, है ना. टेक द वैल्यू ऑफ EMA एस 20 और नियर टू द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो मेरे को ट्रेंड पता चल जाएगा क्या है. ठीक है, मतलब कैसे चल रहा है, थोड़ा मेरे को आइडिया लग जाएगा. Through this approach works well on some situation. It is still not perfect, especially in cases when a given sequence is volatile. For example, क्या कहना चाह रहा है? If theta 2 differs too much from theta 1, if there is a difference in the parameters. Okay, then while calculating the second value of V2, the weighted average will normally put much more importance on the previous trend V1 than the current observation theta 2. As a result, the approximation will again be too poor. Okay, so ये पूरा जो मैथ्स चल रहा है, ठीक है, आपसे क्या कहा गया, यही समझा रहा था ना मैं ऊपर यहाँ ये. इट क्वेश्चन दैट इफ यू टेक द वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 for the EMA. Okay, then it is difficult to analyze the trend because initially we don't have enough data, sufficient data to understand the pattern in a sequence. Okay, then it gave a solution. Why shouldn't you take V naught as the first value of the data itself? Let us take data equal to V naught. Whatever be the entry you are available with the data currently, just put that particular value. Don't take 0.
okay, or near to the first data point, just take the value of a naught. But then again it said, if there is a difference between theta 1 and theta 2, between two parameters, again it will be difficulty for us, okay, to identify the pattern in the data. Okay, and this all things happen, it has been talking like a theoretical way, but they are all proved mathematically. They have substituted the your data points, various data points they have substituted, and according to that only now they are speaking. Okay, fine. So again it told that yeah, we can get a solution, some solution, but it's not the final solution. Okay, that we are going to get a good pattern here also. Okay, because if we are taking advantage over one of the parameter, other parameters may also give you a trouble. Okay, fine. Then what could be a solution here? So a much more flexible solution they are saying is a bias correction. So instead of simply using computed values vk, they are divided by 1 upon 1 minus beta ki power k, assuming beta chosen to be zero point 0.9. Okay, this expression tends to close to 0 for the first iterations where k is small. This, instead of slowly accumulating the first several values where v0 equal to 0, we are now dividing relatively it with the smaller values. Now what it is saying, okay, let me help you in understanding. Okay, let us suppose the parameter value is 20, initial observation is 20, theta 1 is 20. Okay, your initial v0 is 0, here also initial v0 is 0. Now I'm talking in context of the bias correction. Okay, if you don't apply the bias correction, if you just simply use ema, this is the updated value, this is v1, but it is saying that v1 is equal to 2 upon 1 minus zero point 0.1 की power 1. Okay, zero point 0.1 की power 1, that's what it is saying. v1 is equal to 2 upon 1 minus zero point 0.1 की power 1. Okay, that means क्या करोगे आप, you calculate this thing, v1. Okay, but v1 को calculate करने के बाद you have to do this thing, 1 minus beta की power k. That's what you have to do. Okay, so it is dividing. What it is doing, the much more flexible solution in this technique is bias correction. Instead of simply using computed values, whatever be the values which you computed, don't use this. Whatever be the values of ema you calculated, don't do this. You divide those values by 1 upon 1 minus beta ki power k. You just divide them. Beta value is 0.9 या 0.99, whatever. This expression tends to be close to 0 for first iterations where k is small. It will tends to 0. It says that it will tends to 0. Okay, this expression tends to be close to 0 for first iterations where k is small. Okay, where k is small. Okay, now we'll see how it's going to tends to 0 when k is small. So right now we will be having 1 minus zero point 0.9. So 1 minus zero point 0.9 is 0.1. So zero point 0.1 is nearly equal to 0. Okay, so we don't bother much about it. Okay, so initially whatever you calculated ना, you are just taking हाँ 2 को, ये जो 2 आया था, ये जो 2 you calculated, you are dividing it by 1 minus 0.1. 0.1 is less, sorry, it is not point हाँ 0.9 की power 1. So it is point हाँ, the final answer is 0.1, 2 upon 0.1. Okay, so it's saying that it will tend to 0. That means it is closer to 0, very small value it is. Fine, that's what they are saying. This expression tends to be close to 0. This 1 upon 1 minus beta ki power k, this will tends to 0 for the first iterations where k is small. Where k is small. This is, instead of slowly accumulating the several values of this, we'll divide this by this particular thing. ठीक है, अभी धीरे धीरे करके ये और जीरो की तरफ जाएगा, धीरे धीरे करके जीरो की तरफ जाएगा. अभी तो चलो आपको फिर भी बड़ी वैल्यू मिली 0.1. ठीक है, अभी देखो टेंड करेगा जीरो से. कैसे? नाउ
अगले इटरेशन में थीटा टू द वैल्यू इज 24, हियर V2 यू गेट 4.2, 4.2 को डिवाइड करो 1 माइनस 0.9 से, हियर यू आर गेटिंग 22.11, ये मिल रहा है आपको। ओके, एंड 0.9 का स्क्वायर हो गया, बिकॉज 0.9 का स्क्वायर हो गया सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू 0.81। ओके, तो अब वैल्यू और छोटा हो गया डिवीजन के पर्सपेक्टिव यदि अपन बात करें तो। ओके, ये वैल्यू और जो है वो क्या हो गया, स्मॉल जो है वो हमें मिल रहा है। फाइन, इट विल गेट मोर स्मॉल। Fine. So 1 minus something we are going to do. So whatever be the result I'm getting, dividing, तो मुझे 22.11 मिल रहा। Then again I did calculated theta 3 मेरा ये है, again I calculated V3, I got the value 5.68। Now I will be dividing this by 0.9 की पावर 3। ठीक है, 0.9 की पावर 3। तो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या खेल खेलना चाह रहा है। वो ये खेल खेलना चाह रहा है कि देखिए, ईएमए यू आर गेटिंग, EMA you are getting, but EMA is whatever you are getting now, it is having issues it is having in trend analysis। okay, trend analysis में उसको issues है, क्योंकि इनिशियल डेटा इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू डू दैट, वो नहीं कर पाता। ठीक है, if I check at the moment, okay, if I check at the moment right now, 2 to 3 observations we have calculated, we got the value here as 2, okay, we got the value here as 2, 4.2, 5.68, 7.31, एंड ये मुझे वैल्यूज मिला है यहाँ पर। तो ये जो 2 to 3 वैल्यूज हैं, इस पर यदि मैं बात करूं तो मुझे ट्रेंड क्लियरली नजर नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा ट्रेंड क्या जा रहा है। ठीक है, 2 है, 4.2 है, 5.68 है, तो ये इनिशियल वैल्यूज पर ट्रेंड क्लियर नहीं होगा आपको। लेकिन यदि आप बायस करेक्शन कर रहे हो तो आप देखो कि वी डोंट हैव मच डिफरेंस इन द वैल्यूज। सी, नाउ वी कैन हैव सर्टेन ऑब्जर्वेशन ऑफ अ ट्रेंड। आप देख लो 20, 22, 20, 21, 22, 23, 23, मेरे को ट्रेंड नजर आ रहा है। और यहाँ देखो 2, 4.2, 5.6 से 7.31, आगे चल के 10 तक ये 14 हो जाएगा, 20 तक 20, यहाँ पर शायद आपको कुछ आगे चल के ट्रेंड नजर आए। लेकिन इनिशियली ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इनिशियली जब मैं बायस करेक्शन कर रहा हूं तो मेरे को ट्रेंड मिल रहा है। ओके, हियर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, तो उसको ट्रेंड का ही एनालिसिस करना था। अब आप बोलोगे ज्यादा अंतर तो नहीं है सर, ये 2 है, ये 20 है, ये 4.2 है, 2.11 है, और ये 5.68 आ गया, ये 20.96 आ गया है, ये से चीजें आ गई हैं। ठीक है, अब हम ये नहीं कह रहे आपसे, but the thing is we are actually doing scaling of the data, okay, to precisely adopt the first several terms, क्योंकि मैंने एक assumption करा था ना अपने काम को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, मेरा assumption था v0 इक्वल टू 0, एक assumption के साथ शुरू कर रहा था मैं। तो एक assumption के साथ when I am going to start ना, तो मुझे थोड़ा सा cautious होके चलना पड़ेगा, और कॉशियस होके चल रहा हूं तो भी मैं बायस करेक्शन की बात कर रहा हूं कि हो सकता है इनिशियली आप कुछ गड़बड़ करो, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्शंस उठे हैं। एक तो थीटा को लेकर उठे, थीटा 1, थीटा 2, यदि इसकी वैल्यू डिफर कर गई तो ऑब्जेक्शंस हैं। फिर ये आप v0 को 0 लेकर चल रहे हो तो उसको लेकर भी ऑब्जेक्शंस हैं। ठीक है, हियर थीटा 1 है, थीटा 2 डिफर कर गए, मैक्सिमम है वैल्यूज, इनका बीच का डिफरेंस मैक्सिमम है। मान लो आप v0 इक्वल टू 0 नहीं लेते, यू टेक v0 इक्वल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ द डेटा, यदि ये लेकर भी चलते हो आप। ओके, एंड फॉर सर्टेनली इफ इट हैपेंस कि थीटा 1 एंड थीटा 2 इन दोनों का डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया, तो फिर वो अफेक्ट करेगा अगेन। ऑलराइट, तो ये जो दो बातें थी जो कंसर्न में थी, ऑलराइट, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने बायस करेक्शन करा। ओके, उन्होंने बोला कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी अ पैटर्न इन द डेटा, ओके, बिकॉज वी आर फॉलोइंग सम ऑब्जर्वेशंस इन अ वे जहाँ पर अजम्पशन करके चले हैं, तो ये कर लो आप बायस करेक्शन। और फिर वो बोल रहा है कि बायस करेक्शन भी ऐसा नहीं है कि आपने मन से ही कुछ देखो, डिनोमिनेटर में whatever be the values of v you are getting at the denominator, you are subtracting 1 minus beta की पावर k, that's what you are doing, बीटा की पावर k you are doing। और आप ये कहो कि सर ऐसा कर लेने से मेरी v की वैल्यू बहुत अफेक्ट हो रही है, ना नहीं होगी।
क्योंकि एज योर टाइम स्टैम्प इज गोइंग टू इंक्रीज, जैसे जैसे करते चला जाएगा ना, टाइम स्टैम्प इंक्रीज होगा, ये बीटा की पावर जो के है या बीटा की पावर टी जो है, ये बहुत रिड्यूस होता चला जाएगा, 10 to 0 करेगा। तो 1 - 10 to 0 इज नियरली इक्वल टू 1 होगा। तो यानी कि वो v के बराबर ही होगा। इट विल बी लाइक इक्वल टू वी ओनली अहेड, उसी के बराबर हो जाएगा वो। तो आप ये ना सोचें कि सर कोई गड़बड़, ना कोई गड़बड़ नहीं हुई है। बिल्कुल आप देखो कि जैसा वो चला था, नाउ सी द टेबल, आपको मैं इंक्रीज करके बताऊं। ये देखो, ये 22.28 तक आ गया, ठीक है, अप टू 30, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये है, हाँ, 30 तक, और हम भी 22.26 पर ही हैं। तो 22.28 एंड 23.26, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें। ओके, तो मैच हो जाएंगी। हाँ, इनिशियल वैल्यूज बड़ी आएंगी, लेकिन आप 20 से 23 के बीच में ही हो, ध्यान देना, 20 से 23 के बीच में ही हो। देखो कितनी जबरदस्त बात है ये। यू आर इन बिटवीन 20 to 23, और यहां पर कहां से कहां आ गए, यहाँ पर 2 से 22 तक आ गए। यही तो मैं कह रहा था, चाह रहा था कि आप देखो ना पैटर्न में कितना चेंज आ गया, 2 से 22 तक। ओके, यू स्टार्टेड विद 0, then the things went till 22, and here you started with 0, then things went from 20 to 23। सी 3 का ही चेंज आया है, और कोई चेंज नहीं आया, मतलब 30 इटरेशंस हमने पास कर दिए, सिर्फ हम 3 तक ही चेंज हुए। बस ये यही तो पैटर्न था, यही तो समझना था कि देखो कितना फायदा हुआ। ठीक है, हियर यू कैन सी दैट देयर इज मोर फ्लक्चुएशंस, 2, 4.2, 5.68, ठीक है, ऐसे जंप कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, वो नहीं है। आप जब देखोगे तो 20 से 23.26 तक ही वी आर गेटिंग, नॉट, मतलब अपन एक पैटर्न मिल गया मुझे कि इसी रेंज में आ रही है वैल्यूज। यहाँ पर कितनी बढ़ गई, 2 से 22 तक आया है। ठीक है, और कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे करके वो जो नीचे वाली टर्म है वो इक्वल टू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीटा की पावर के 10 to 0 करेगा, तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा वो। ओके, नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यही बायस करेक्शन है, एंड दैट इज इंक्लूडेड इन योर एडम। और इन एडम ना, इट डिड परफॉर्म द बायस करेक्शन फॉर बोथ द मोमेंट्स, यानी उसने मोमेंटम में भी लगाया था, और बीटा 1 और बीटा 2 दो कोएफिशिएंट लेकर चला था वो। ठीक है, तो फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, इन इन बोथ द मोमेंट्स इट परफॉर्म द बायस करेक्शन, दोनों में करा था उसने। ऑलराइट, ये आपको फॉलो करना है। सो दिस इज द स्केलिंग वी हैव डन, एंड इट परफॉर्म वेरी प्रिसाइसली। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आगे तक इम्पैक्ट कर रही है, देख तो रहे हो आप ना, 30 के बाद तो भाई उसका खेल ही खत्म हो रहा है, वो तो इसी के बराबर हो गई। तो बस इनिशियल की जो स्टेजेस थी जहां पर स्ट्रगल था, दैट वुड आई विल मैनेज बाय बायस करेक्शन, बाय दिस मैथ्स। ठीक है, ऑल राइट। सो ये कह रहा है ना, व्हेन के बिकम्स लार्जर द डिनोमिनेटर ग्रेजुअली अप्रोचेस टू 1। ठीक है, वो बीटा की पावर के 0 होने लग जाएगा, 0 हो जाएगा, तो नीचे तो 1 - 0 वो 1 हो जाएगा, बात खत्म हुई। दस ग्रेजुअली ओमिटिंग द इफेक्ट ऑफ स्केलिंग। मतलब आप कलाकारी देखो कितनी करी मैथ्स की। इनिशियली तो स्केल का कुछ इम्पैक्ट है, मैं मान रहा हूँ इनिशियल, बिकॉज व्हेन यू सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम सर, in the initial calculation of v was 2 sir at that side, and you calculated after bias correction it came to be 20 sir। ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो 2 है और ये 20 है सर, ये तो अजीब ही हो गया। ठीक है, इतना डिफरेंस तो भाई इनिशियल स्केल में तो आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वो स्केलिंग का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, एंड विल बी नियरली इक्वल टू दिस, बराबर हो जाएंगे। तो ये देखिए आप, ये एक टाइप की ऐसे मैथ्स लगाई है हमने। ठीक है, ऑल राइट। सो इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, एंड देन दिस इज हाउ द ट्रेंड गोज। ओके, नो लॉन्गर नीडेड, लेटर ऑन स्केलिंग की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्टेन इटरेशन द एल्गोरिथम कैन रिलाई ऑन हायर कॉन्फिडेंस इन द रीसेंट वैल्यूज विदाउट एनी एडिशनल स्केलिंग। आगे फिर जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इन्हें प्लॉट भी कर दिया, ऑब्जर्वेशंस हैं, येलो वाले ऑब्जर्वेशंस हैं, रेड वाले ईएमए हैं, और ब्लू वाले देखो, ब्लू को देखो आप, क्या गजब पैटर्न फॉलो कर रहा है, देखो ब्लू इसी के साथ चल रहा है। और आपको उसने ऊपर ही क्या बोल दिया था कि हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो 20 है, वो 20 है एक्चुअल, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो, मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स आर अबाउट 20।
स्टार्टिंग वाले 20 और मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर अबाउट 20। और ये देखो, जब आपने बायस करेक्शन करा तो ब्लू वाले पॉइंट्स वो उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो उन्होंने सही पैटर्न पकड़ लिया। लेकिन ये देखो, ये ईएमए वाले, ये 2 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 8 से, 10 से, 12 से, फिर जाके बेचारे पहुंच रहे हैं। तो यार ये आप देखो ना, मैं जब से ऊपर क्या चिल्ला रहा था कि ये है, ये बताओ, ये ट्रेंड सही है क्या? कैन यू प्लीज टेल मी, इज दिस अ करंट करेक्ट ट्रेंड? मेरा ट्रेंड तो ये था ना यार, येलो वाला डेटा तो ऐसे मूव कर रहा था। तुम तो नीचे से आ रहे हो भाई, यहाँ ऊपर बाद में जाके मैच कर रहे हो। तो तुम तो इनिशियल ट्रेंड तो आपका गलत ही है। Are you understanding my point of view or not? By seeing the diagram, please let me know. I'm waiting for your response. See the diagram and see the initial trend of EMA. It started from 2 and then it came to this 20 and 20. It take a lot. So initial mera wastage hai pura. Okay, whatever the efforts I did with the EMA initially, that's all waste. Because here I'm struggling to identify the pattern, because the pattern of yellow points are the correct. Okay, but coming from here to then here now, after certain iteration, then I'm matching the pattern. But initially, I'm not. I'm unable to match the patterns. Now tell me, you understood this point or not by seeing the diagram? Yes. Okay. Can you unmute and you can say or something like, okay, yeah, either you can put a comment that why we perform bias correction. Yes. Okay, I hope you got this point. Okay, that why we did perform the bias correction, because there is difference in the patterns. Okay, so red one was EMA, एंड ये ईएमए ये पैटर्न इनिशियल दे रहा है ये, और मैं भैया यहां से चालू कर रहा हूं। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं कर रहा। ओके, तो ब्लू वाले पॉइंट्स जो हैं आपके बायस करेक्शन वाले, उन्होंने पैटर्न मैच कर लिया। दैट्स व्हाई आई एम करेक्टिंग द बायस पैटर्न। ठीक है, ये मैं कर रहा हूं। ओके, सो बायस करेक्शन इज अ टेक्निक यूज टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ इनएक्यूरेट इनिशियल वैल्यू प्रिडिक्शंस। देखा, वो जो मैं ऊपर बोल रहा था अभी अंग्रेजी में लिख दिया इसने। ठीक है, सो दिस यूजुअल वे ऑफ कैलकुलेटिंग दीज एवरेजेस गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू द फर्स्ट वैल्यूज which can mess up the overall trend, especially if those initial values are different from the rest of the data. ठीक है, so to explain, imagine you have a time series where the first few points are quite different from the others. If you use a standard formula, those points will impact the EMA. भाई वही मैं कह रहा हूं कि वैल्यू यदि अलग अलग हुई ना तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हियर क्या बोला, द यूजुअल वे ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेजेस गिव मच इंपॉर्टेंस टू द फर्स्ट वैल्यू को इंपॉर्टेंस देती है, विच कैन मेस अप, वो पूरा गड़बड़ कर देगा। यदि इनिशियल वैल्यू और बाद की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज है तो लफड़ा हो जाएगा सब। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम सीरीज है। ओके, लेट अस कंसिडर द टाइम सीरीज वेयर द फर्स्ट फ्यू पॉइंट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, and if we rely on the standard formula of the EMA which we have used, okay, so the first point will heavily influence the average, making the less accurate overall prediction in the trend. तभी तो आपको ये कोई बताता नहीं है। जब हम टाइम सीरीज का भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब वो स्टॉक मार्केट का भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तब वहां पर रोलिंग, मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ, कई बार बोला मैंने कि रोलिंग निकालते हैं अपन, रोलिंग करते हैं। वो 3 डेज का 7 डेज का वो ईएमए ही है। वो क्यों करते हैं? ताकि बस ये इसी इसी चक्कर में, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ओनली, बिकॉज इफ द इनिशियल वैल्यूज आर डिफरेंट एंड अपकमिंग वैल्यूज आर डिफरेंट, देयर इज अ चेंज इन दैट ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट करेगा और ईएमए बिल्कुल सही नहीं निकलेगा। और आप ये देख रहे हो डायग्राम से कितना गड़बड़ है वो। तो आप जो है ईएमए निकाल रहे हो, बायस करेक्शन करना आप, ठीक है, ये ज़रूरी है। और इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगा कि अभी तो मैं ख़ैर बाद में धीरे-धीरे करके, और जब मैं इन सारी बातों पर आया, देन ओनली आई एम आल्सो इंक्लूडिंग दिस बायस करेक्शन। एल्स रोलिंग निकाल लिया, ईएमए निकाल दिया, इतना कर दिया, दैट्स व्हाट वी डू इन द स्टॉक मार्केट और प्राइस प्रेडिक्शन फॉर द टाइम सीरीज डेटा, दैट्स इट। आई एम आल्सो नॉट इंक्लूडिंग दैट बायस करेक्शन देयर। बस ईएमए निकाल के अभी तक जितना भी प्रोजेक्ट करे सिर्फ ईएमए और रोलिंग निकाल के ही करा। लेकिन बाद में फिर ईएमए जो है वो समझ में आया, एंड देन उसको यूज करा।
ठीक है, लेटर ऑन। इनिशियल तो मैं भी खुद इसी तरीके से सॉल्व कर रहे थे। ऑल राइट, ठीक है। सो what we did, we perform bias correction that offers a more flexible solution to the problems. Okay, and this makes sure that the initial values do not have too much influence on the overall trend. ठीक है, तो ये बात है। एज वी गो फर्दर into the data, dividing the data becomes equal to 1, so that will be the same, so no more bias correction is required. So initial trend को ये impact करता है, उसको better कर देगा, बाकी बाद में कोई चिंता की विषय नहीं है। Later on the trend will be fine, no worries. Okay, so in simple terms, the bias correction helps in fixing the problem of initial values. Okay, and because the initial values may impact too much in the EMA, okay, which will not cover the pattern in the data, so we want to make it accurate. Okay, so that is why जो है हम bias correction करते हैं। Fine, so exponential weighted average, okay, is primary use, and it achieved with the help of a hyperparameter beta. Okay, exponential weighted average has a wide applications in time series analysis. Okay, and it makes gradient descent algorithm useful to get converge. Okay, convergence acceleration. ओके, सो टाइम सीरीज का कॉन्सेप्ट ग्रेडियंट डिसेंट में मैं कन्वर्जेंस के लिए यूज कर रहा हूं। सोचिए जरा, ठीक है। सो ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच वी लर्न इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल डेरिवेशंस, अल्गोरिथम्स, फॉर्मूले ना, दे आर हेल्पिंग अस। कोई भी चीज नहीं है, आपने जो भी पढ़ा है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कहीं ना कहीं अब बस आपको अपना ब्रेन लॉजिक लगाना है दैट वॉट एवर वी लर्न वेयर कैन वी अप्लाई। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर अब आपको, यदि आपको उस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया कि इसका यूज क्या था, देन एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो मोमेंटम ऑप्टिमाइजर एडम, वहां पर जो है अननेसेसरी ऑसिलेशंस होते हैं। अब एडम लगा दिया अपन ने, मोमेंटम को खत्म करा, और फिर ये आपको लोकल मिनिमा मिल जाएगा यदि आप ईएमए लगाओगे तो। ओके, सो दैट्स व्हाट द स्टोरी ऑफ ईएमए। ओके, एंड जो है हमको ये कवर करना था। फाइन, सो वी हैव लर्नड all the optimizers which are the main, okay, which you should know while doing the deep learning. Okay, and and a flow of deep learning program, deep learning code, I also explained you, okay, by giving some implementations. Fine, that the library TensorFlow is important for you. Either you can use PyTorch also, ठीक है, टू परफॉर्म योर इम्प्लीमेंटेशन फॉर द डीप लर्निंग। ये फेमस हैं दोनों, ठीक है, एक गूगल का है और एक मेटा का है। ओके, फाइन, तो हम इनको यूज करते हैं। ये जो है पाइटॉर्च, खास करके इमेजेस वाला जो है, वहां पर सक्सेसफुल मोर है, ठीक है, सक्सेसफुल ज़्यादा है। टेंसर फ्लो यूज करते हैं, टेंसर फ्लो ऑल्सो वी डू यूज इन इमेजेस वाले में भी इसको यूज करते हैं, अदर देन दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं। ये पाइटॉर्च का ज़्यादा यूज मैंने देखा है, ठीक है, फाइन। तो वट एवर विद द कोड आई shared with you, I explained you, there I use the TensorFlow. Okay, and you have to import TensorFlow, Keras, you have to import the model, you have to import the layers. This is how the approach is been done in order to perform the implementation. Okay, so आप इन सबको इंपोर्ट करें, ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करें, लेयर इंपोर्ट करें, ठीक है, मॉडल बनाए सिक्वेंशियल। ओके, मॉडल यू हैव टू मेक अ सिक्वेंशियल मॉडल। ओके, ये भी आपने देखा है। और मॉडल में फिर आपको ऐड करनी पड़ेंगी लेयर्स। ओके, ये आप करते हैं, ठीक है। लेयर्स में भी आई डिड एक्सप्लेन यू अबाउट द डेंस लेयर, जहां पर कंप्यूटेशन होते हैं। ओके, ऑल द कंप्यूटेशंस आर डन ऑन दिस लेयर। Okay, and then we are having other layers also to fight against some issues in your training or the learning process, that is your overfitting. Okay, for that now I told about batch normalization. Okay, ये बताया था मैंने। And then I also told about your dropout. Okay, ये भी बताया है मैंने, ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हैं। दीज आर द रेगुलराइजेशन टेक्निक्स, ठीक है, ये करते हैं, रेगुलराइजेशन है जो कि फाइट करेगा ओवरफिटिंग से, ठीक है। ऑल राइट,
नंबर ऑफ आपको ये डिसाइड करना है, ओके, व्हाइल मेकिंग एन आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर डेवलपमेंट इज द core of your deep learning. Okay, there are predefined architectures, okay, which are successful architectures. We do use these architectures in context of your computer vision, in context of your NLP. Okay, फाइन। तो वो आगे जैसे रहेंगे मैं बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ प्री डिफाइंड जो है आर्किटेक्चर्स उनका यूज़ करना है, क्योंकि जनरेटिव में हमारा कंसर्न खास करके एलएलएम्स पर है। तो एलएलएम्स में हमारा कंसर्न टेक्स्ट पर है, तो टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी होंगे वो मैं आपको जो है बताऊंगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ऐसा है, आप आर्किटेक्चर बनाएंगे, लेयर्स में न्यूरॉन्स ऐड करेंगे। ओके, दैट्स व्हाट यू डू। आपको ये ध्यान रखना है डेटा का साइज कितना है। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ द डेटा, हाउ मेनी फीचर्स डेटा इज हैविंग। तो मेरे को न्यूरॉन्स कितने लेने हैं, लेयर्स कितनी ऐड करनी है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ओके, आप आर्किटेक्चर बनाएंगे। आफ्टर मेकिंग एन आर्किटेक्चर यू हैव टू यू हैव टू कंपाइल द आर्किटेक्चर। ओके, तो आप करते हैं मॉडल डॉट कंपाइल। ओके, एंड वट एवर वी लर्न सो फार, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिमाइजर होता है। ओके, सो ऑप्टिमाइजर जो होता है, ओके, वट एवर वी लर्न सो फार, ये ऑप्टिमाइजर का ही कॉन्सेप्ट था, बिकॉज यू नीड टू कॉन्फ़िगर योर मॉडल। ओके, बिकॉज क्योंकि जब वो ट्रेनिंग होगी उसकी, ओके, ट्रेनिंग और लर्निंग या ट्रेनिंग या लर्निंग होगी उसकी, तो जो एडजस्टमेंट्स होंगे वो किसके करस्पॉन्डिंग होंगे, ये मॉडल डॉट कंपाइल जो कॉन्फ़िगरेशन करा है आपने। बिकॉज जस्ट एडिंग लेयर्स टू द मॉडल इज जस्ट लाइक एक आपने एक सेटअप बना के तैयार कर दिया, लेकिन वो भी काम करने वाला नहीं है। Unless and until you don't compile the model, your setup will not work. So you have to first compile the model, that how calculation will be done in a model, how the layers will work, how the neurons, the weights and bias and all these parameters will get updated. That will only be done with the help of the compilation. So you have to compile the model, you have to configure the model, so it will work according to these formulas. Okay, and then later on you will do model.fit. ओके, मॉडल डॉट फिट करोगे आप, जहाँ पर आप अपना डेटा रखोगे, एक्स एंड वाई वाला डेटा रखोगे, आप बैच साइज भी रखोगे। ओके, आई ऑल्सो टोल्ड अबाउट द बैच साइज। ओके, तो ये आप रखोगे एंड हिस्ट्री से इक्वेट करोगे आप इसको। ओके, फाइन। तो ईपोज दोगे आप यहाँ पर, बैच साइज ईपोज, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू ट्रेन दिस मॉडल, कितना ईपोज लेना है, 10, 50, 100, वट एवर आपको जो लेना है वो लोगे आप। ठीक है, एंड देन ये होने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, वी कैन डू सम प्रेडिक्शंस। ठीक है, मॉडल डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन। ठीक है, मॉडल डॉट प्रोडक्ट। तो हियर वी आर गोइंग टू टेक द टेस्टिंग डेटा। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट डेटा लेंगे, विल टेक द प्रेडिक्शंस, वाई प्रेडिक्शंस फ्रॉम इट। ठीक है, उसके बाद अच्छा मॉडल की ट्रेनिंग हो जाए, मॉडल की ट्रेनिंग हो जाए तो इसके जो है हिस्ट्री प्लॉट्स बना सकते हैं अपन। ठीक है, वी कैन मेक द हिस्ट्री प्लॉट्स। ओके, तो हिस्ट्री प्लॉट्स में क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डीलिंग विद द रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है, फिर डीलिंग विद द रिग्रेशन प्रॉब्लम, तो आपको सिर्फ एरर का ही प्लॉट बनाना है। जस्ट मेक एन एरर प्लॉट। सो व्हाट वी मीन बाय द एरर इज, एरर शुड हैव टू बी रिड्यूस्ड, एरर कम होना चाहिए। इस तरीके का कुछ प्लॉट बनना चाहिए हमारे पास। एज वी गोज ऑन इंक्रीजिंग द ईपोस, जैसे जैसे ईपोस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो एरर है वो कम होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल शुड बी नियरली इक्वल टू, ओके, होना चाहिए। फाइन, एरर कम होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। यदि आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, ओके, इफ यू आर डूइंग द क्लासिफिकेशन, तो आपके पास वहां पर इवेल्युएशन के लिए होती है एक्यूरेसी। इन दैट पर्टिकुलर केस एक्यूरेसी बढ़ना चाहिए, एक्यूरेसी शुड हैव टू बी इंक्रीज, बढ़ना चाहिए। और इसमें भी आप ये देखते हो, ये टू टाइप्स होती है, एक होती है ट्रेनिंग और एक होती है वैलिडेशन। ओके, एरर भी ऐसे ही होते हैं, ट्रेनिंग एरर्स एंड वैलिडेशन एरर्स। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द कर्व फॉर ट्रेनिंग, टी आर। ठीक है, सो आई एक्सपेक्ट वैलिडेशन जो है वो कहाँ होना चाहिए, वैलिडेशन का एरर और जो है ज़्यादा कम होना चाहिए इससे। ठीक है, इट शुड बी मोर। ठीक है,
मतलब और ज़्यादा कम होना चाहिए इससे। सो व्हाट इट शुड बी लाइक, वो भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशन एंड ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन, ये लगभग नियरली आया तो ठीक है। ठीक है, नियरली आया तो ठीक है। यदि ज़्यादा गैप आ रहा है दोनों में तो ओवरफिटिंग पे जा रहे हो फिर तुम। ओके, यू आर रीचिंग टुवर्ड्स ओवरफिटिंग। उसी तरीके से एक्यूरेसी की बात करूं तो फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रेनिंग एक्यूरेसी। ओके, दिस इज ट्रेनिंग एक्यूरेसी, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वैलिडेशन की एक्यूरेसी ट्रेनिंग से ज़्यादा हो। वेल एक्यूरेसी शुड बी मोर देन द ट्रेनिंग। तो एक्सपेक्टेशन ये कहती है कि वैलिडेशन का एरर ट्रेनिंग से कम हो और वैलिडेशन की एक्यूरेसी ट्रेनिंग से ज़्यादा हो। ये एक्सपेक्टेशन होती है, ये एरर है और ये एक्यूरेसी है, ये एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, तो वैलिडेशन एक्यूरेसी शुड बी मोर देन ट्रेनिंग। एक चीज़ है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ रही है 95, वैलिडेशन आ रहा है 80, ओवर फिटिंग है। ठीक है, दैट विल बी लाइक एन ओवर फिटिंग। तो समझ, मतलब ट्रेनिंग में तो अच्छा स्कोर दे रहा है, वैलिडेशन में बहुत कम हो गया, 15% का डिप मिला है मुझे, ये ओवर फिटिंग है। ओके, सो इट इट शुड बी लाइक 95 93 चलेगा। मैक्स टू मैक्स मैं 90 तक भी खींच लूंगा। ठीक है, 95 90, लेकिन आप बोलो कि और कम हो जाए तो भाई वो प्रिफर्ड नहीं है। ठीक है, उसको इतना कम नहीं चलेगा। ठीक है, तो कंपेटेबल होना चाहिए दोनों। ठीक है, तो ये बातें जो हैं मैंने आपको कोड्स के माध्यम से, कोड्स में, और आई थिंक आई हैव ऑलरेडी पुट देम ऑन द ड्राइव, आई विल पुट देम बैक अगेन इफ दे आर नॉट प्रेजेंट। सो ये जो है मेरे पास मैक्सिमा मिनिमा के भी कोड्स हैं। ठीक है, आप इसको वर्कआउट कर लीजिए। ठीक है, ड्रॉप आउट एंड बैच नॉर्मलाइजेशन के भी कोर्स हैं, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड दीज। ओके, इन्हीं के बारे में बता रहा था मैं, सो यू शुड प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के भी कोर्स हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन एंड ड्रॉप आउट, व्हाट डज दे मीन, ये भी हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है कि बैच नॉर्मलाइजेशन शुड बी फर्स्ट एंड देन एक्टिवेशन फंक्शन देन ड्रॉप आउट, इस तरीके का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, सो अप्लाइंग बैच नॉर्मलाइजेशन बिफोर द एक्टिवेशन इंश्योर्स द एक्टिवेशंस आर नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, एक्टिवेशन जो भी हम परफॉर्म करेंगे उसमें नॉर्मलाइज्ड डेटा जाएगा, तो वो बेटर है। बाद में ड्रॉप आउट कर लो। ठीक है, बाद में ड्रॉप आउट कर लो। ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बेटर अप्रोच है। ठीक है, ऑल राइट, ये है मॉडल के अंदर। आप यदि आर्किटेक्चर बना रहे हो तो पहले नॉर्मलाइजेशन, देन एक्टिवेशन एंड देन फिर ड्रॉप आउट, ऐसे यूज करना। दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क। ओके, फाइन, तो ये बातें हैं। ऑल राइट, ये बता चुका था मैं सारा। ओके, फाइन। तो ये कॉन्सेप्ट जो मुझे बताना था डीप लर्निंग के पर्सपेक्टिव में, ओके, ऑप्टिमाइजर्स, ये अभी यहाँ पर एंड हुआ। एंड देन नेक्स्ट आई विल बी स्टार्टिंग विद अदर important concepts, that is auto encoders. ठीक है, so I'll be starting about these encoder decoder principles. Okay, how to uh, make such architectures and what are the importance of these architectures. So auto encoder पढ़ाऊंगा अब मैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो वो भी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, फाइन। सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी स्टॉप presenting, let me stop